السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ معیشت کو پٹری پر لانا چیلنج ہے، خسارے کے شکار اداروں کی نجکاری، ادارہ جاتی اصلاحات اور سرمایہ کاری میں اضافہ کرنا ہے۔ حکومت اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی پر یقین رکھتی ہے، میڈیا نمائندوں کے حقوق کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ فیک نیوز چیلنج سے نمٹنے کے لیے مین سٹریم میڈیا کا کردار انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے وفد سے گفتگو۔ ٹیکس دائرہ کار میں اضافے اور چوری روکنے کے لیے اہم اقدامات کا فیصلہ، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم مکمل فعال کرنے کا حکم، سسٹم کی راہ میں حائل رکاوٹوں کی نشاندہی اور ذمہ داروں کے تعین کے لیے انکوائری کمیٹی قائم، تمباکو، چینی، سیمنٹ اور کھاد سمیت تمام شعبوں میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگایا جائے۔ ملک معاشی مشکلات کا شکار ہے، مافیا ملی بھگت سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، سسٹم لگانے سے انکاری کارخانوں کو فوری سیل کیا جائے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ I shall put the draft resolution to the vote now. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2024/254 please raise their hand. The result of the voting is as follows: 14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention. The draft resolution has been adopted as Resolution 2728/2024. سلامتی کونسل نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی، 14 ملکوں نے قرارداد کی حمایت کی، امریکہ نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا جنگ بندی کی قرارداد کا خیر مقدم، فوری جنگ بندی بہت دیرینہ مطالبہ تھا، سلامتی کونسل کی قرارداد پر ضرور عمل درآمد ہونا چاہیے، قرارداد پر عمل درآمد میں ناکامی ناقابل معافی فیل ہوگا، انتونیو گوتریس۔ Mobilize the international community. اسرائیلی فوج کے دیر البلا، رفح اور خان یونس میں فضائی حملے، مزید 107 افراد شہید، 176 زخمی۔ صہیونی فوج نے شمالی غزہ کے لیے تمام امدادی قافلے روک دیے، 7 اکتوبر سے اب تک شہداء کی مجموعی تعداد 32,333 ہو گئی، 74,694 زخمی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا برطانیہ کے لیے پی آئی اے کی پروازوں کی جلد بحالی کی ضرورت پر زور، دونوں وزراء خارجہ کا تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، موسمیاتی تبدیلی اور عوامی رابطوں کے فروغ کے شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ حکومت معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر کاربند، اقتصادی بہتری کے لیے جامع روڈ میپ کی تیاری جاری ہے، غریب عوام پر ٹیکس بوجھ کم کریں گے، میثاق معیشت پر سب کو اتفاق کرنا ہوگا، نجکاری، حکومتی اخراجات میں کمی، ٹیکس اصلاحات اور ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن پر توجہ مرکوز ہے، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ۔ پنجاب بھر میں 600 شاہراہوں کی تعمیر و مرمت کے ساتھ 5 ایکسپریس وے اور 3 موٹر ویز تعمیر ہوں گی۔ صوبے میں مفت ادویات گھروں تک پہنچانے کا سلسلہ جلد شروع ہوگا۔ آئندہ 3 ماہ میں 18 شہروں میں سیف سٹی منصوبوں کا آغاز ہوگا۔ 36 اضلاع میں فضلہ ٹھکانے لگانے کے لیے جامع نظام لا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کی فیصل آباد کے ارکان اسمبلی سے گفتگو۔
खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की पाकिस्तान के सबसे बड़े IT पार्क की मंजूरी। इस्लामाबाद में कायम होने वाला ये IT पार्क 3.3 एकड़ पर मुहित होगा। मकसद 6000 फ्रीलांसर्स को जदीद सहूलतों की फराहमी और सर्विसेज के जरिए मुल्की मईशत में हिस्सा डालना है। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 373 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 65,525 पर बंद। 26 करोड़ 11 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार। यौम पाकिस्तान परेड के मुंतजमीन में शील्ड्स की तकसीम। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने तारीफ असनाद तकसीम की। यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की परेड दिफाई और पेशा वराना महारत का शानदार मुजाहरा थी। सदर मुमलकत अवामी फलाह हुकूमत की अहम तरजीह। यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी जरूरी अशिया की रियायती निर्खों पर फराहमी। वफाकी वज़रा जाम कमाल और कैसर अहमद शेख का कराची में यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा। अवाम को रिलीफ की फराहमी के अमल का जायजा लिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का लाहौर का दौरा। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की फराहमी और मेयार का जायजा। सार्फिन को दरपेश मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी दबाने के जालिमाना भारतीय हथकंडे। सरकारी मुलाजमीन के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। हुर्रियत क़यादत का बुनियादी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ्द का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजाम का जायजा। ड्रेसिंग रूम्स, इंक्लोजर्स और अंपायर रूम समेत स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा। ICC वफ्द लाहौर और पिंडी स्टेडियम्स का भी दौरा करेगा। और कौमी T20 टीम का तरबियती कैंप कल से काकुल में शुरू होगा। फिजिकल फिटनेस कैंप के लिए 29 खिलाड़ियों का ऐलान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। PKLI हजारों लाखों आंखों में वो उम्मीद की किरण रोशन करता है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सबसे ये कहूँ कि इस अदारे को आप सपोर्ट करें। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमने ऐसे वक्त में इक़्तिदार संभाला है जब मुल्क को बहुत मुश्किलात का सामना है। मईशत को पटरी पर लाना एक सबसे बड़ा चैलेंज है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वक्त से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि खसारे के शिकार हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी, इदारा जाती इस्लाहात, सरमायाकारी में इजाफे और किफ़ायतशारी पर तवज्जो मरकूज है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती अखराजात में कमी के लिए कमेटी बना दी गई है जो जल्द अपनी सिफारिशात पेश करेगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि वफाकी काबीना ने रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मराद न लेने का फैसला किया है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि FBR को मुकम्मल डिजिटल करने के लिए बैनुल-अक़वामी माहिरीन की खिदमात हासिल की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि टैक्स दहिंदगान, बरामद कुनिंदगान और ख़वातीन कारोबारी शख्सियात की हुकूमती सतह पर पजीराई की जाएगी। मीडिया की अहमियत का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मीडिया रियासत का चौथा सुतून है। मुआशरे की तामीर और तरक्की और अवाम की ज़हनी और फ़िक्री तरबियत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का किरदार इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इजहार राय और मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखती है और इस हवाले से हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मीडिया नुमाइंदों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। उम्मीद है ज़राए इब्लाग़ गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग के जरिए जमहूरियत के इस्तेहकाम में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। उनका कहना था कि झूठी खबरें एक बड़ा चैलेंज है जिसकी रोकथाम में मेन स्ट्रीम मीडिया का किरदार इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की कोशिशों में हुकूमत का साथ दे।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने टैक्स के दायरे में इजाफे और चोरी रोकने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल बहाल करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की राह में हायल रुकावटों की निशानदही और जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी के क़याम की हिदायत की। ये कमेटी 7 दिन में सिफारिशात पेश करेगी। इंक्वायरी कमेटी कारखानों में टैक्स का खुदकार निज़ाम के तलाक के लिए आइंदा के लाहे अमल से मुतालिक तजावीज़ भी देगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि तंबाकू, चीनी, सीमेंट और खाद की सनतों में गुज़श्ता 2 बरस में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को मुकम्मल फ़ाल होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बाकी अहम शोबों में भी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाफिज किया जाए और इस सिलसिले में हायल तमाम कानूनी रुकावटों को दूर किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सीमेंट के कारखानों की तमाम प्रोडक्शन लाइन्स पर सिस्टम का निफाज यकीनी बनाया जाए। ऐसे तमाम कारखाने जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने से इनकारी हों उन्हें फौरी सील कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि महसूलात के साथ ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को जालसाजी और गैर मयारी मसनूआत की रोकथाम के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क माशी मुश्किलात का शिकार है और माफियाज मिली भगत से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने हिदायत की कि जाली और गैर रजिस्टर्ड सिगरेट की फरोख्त बंद की जाए। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता इदारों की खिदमात ली जाएं। ब्रीफिंग में बताया गया कि तंबाकू के 14 बड़े कारखानों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल तौर पर फाल है, जबकि 12 कारखानों को सिस्टम न लगाने की वजह से सील कर दिया गया है। खाद के तमाम कारखानों में भी ये सिस्टम मुकम्मल फाल है। चीनी और सीमेंट के कारखानों में सिस्टम के इत्तलाक में तकनीकी रुकावटों का सामना है, जिन्हें दूर करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गजा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। न्यूयॉर्क में होने वाले इजलास में पेश की जाने वाली करारदाद की 14 ममालिक ने हिमायत की है। अमरीका ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। गजा में जंगबंदी से मुतालिक पहली बार करारदाद मंजूर हुई है। I shall put the draft resolution to the vote now. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2024/254 please raise their hand? The result of the voting is as follows: 14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention. The draft resolution has been adopted as Resolution 2728, 2024. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने करारदाद का खैर मकदम करते हुए कहा कि फौरी जंगबंदी बहुत देरीना मुतालबा था। करारदाद पर जरूर अमल दरामद होना चाहिए। अमल दरामद में नाकामी नाकाबिले माफी फेल होगा। दूसरी जानिब गजा के वस्ती इलाके देरुल बलाह, रफा और खान यूनिस में इसराइल के फजाई हमलों में दर्जनों फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटे में मजीद 107 अफराद शहीद और 176 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में मजमूई तौर पर 32,333 फलस्तीनी शहीद जबकि 74,694 जख्मी हुए। इसराइल ने शिमाली गजा के लिए ग़िज़ाई इमदाद ले जाने वाले तमाम काफिले रोक दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की फलस्तीनी महाजरीन के लिए इमदादी एजेंसी और नरवा के हाई कमिश्नर फिलिप लाज़ारेनी ने कहा है कि आलमी ग़िज़ाई प्रोग्राम की जानिब से गजा में कहत की वार्निंग दी गई है। इसराइल की जानिब से इमदादी काफिलों को रोकना सूरत हाल को मजीद संगीन बना देगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से जर्मनी के सफ़ीर अल्फ्रेड ग्रेनास ने मुलाकात की और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जर्मनी यूरोप में पाकिस्तान का अहम शराकतदार है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद वसअत देना चाहते हैं। उन्होंने जर्मनी की तरफ से तिजारती वक्त पाकिस्तान भेजने के इक़दाम का खैर मकदम करते हुए हुकूमत की तरफ से भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने जर्मन चांसलर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत देते हुए तहनीती पैगाम पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मुलाकात की। लाहौर में होने वाली इस मुलाकात में मजबूई सियासी सूरत हाल और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान और मगरबी अफ्रीका के मुल्क कोट दिबाग के दरमियान तिजारती और मुआशी ताल्लुकात में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया है।
इस्लामाबाद में नामजद सफ़ीर महमूद अख्तर महमूद से गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात और अवामी रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए इम्कानात तलाश किए जाएँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी चावल, आलात जराही, खेलों का सामान और दूसरे शोबों में बरामदात बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। सदर आसिफ अली जरदारी ने नामजद सफ़ीर पर जोर दिया कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में इजाफे के लिए तमाम तवानाइयाँ बरूए कार लाई जाएँ। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार को बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड कैमरॉन ने टेलीफोन किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में बताया कि पाकिस्तान और बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा ने तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, मौसमारी तब्दीली और अवामी राब्तों के फ़रोग़ के शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कसीर और जहती ताल्लुकात हैं जिन्हें तस्वीराती शराकतदारी में तब्दील करना है। उन्होंने बरतानिया के लिए PIA की परवाज़ों की जल्द बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने अफ़गानिस्तान और गज़ा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारिजा ने बरतानवी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि हुकूमत माशी इस्लाहात के एजेंडे पर पूरी तंदही से कारबंद है। इक्तिसादी बेहतरी के लिए जामे रोड मैप मुरतब किया जा रहा है। तफसील बता रही हैं सदफ अफसल। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वज़ीर आज़म की तवज्जो मुआशी इस्लाहात पर मरकूज है, गरीब अवाम पर टैक्स के बोझ को कम करेंगे। उन्होंने कहा कि नजकारी, हुकूमती अखराजात में कमी, टैक्स इस्लाहात, FBR की डिजिटलाइजेशन, टैक्स नेट में इजाफे जैसे इकदामात पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। गरीब आदमी पे टैक्स का बोझ कम करने के वाले से कि टैक्स का बोझ वो उठाए जिसमें टैक्स का बोझ उठाने की ताकत है। तो ये जो मुआशी इस्लाहात का सिलसिला है ये बड़ी तेजी के साथ जारी है। वो बिजनेसमैन जिन्होंने टैक्स का हुजम बढ़ाया, तो ये पहली दफा है कि हुकूमत पाकिस्तान उनको एजाज़ात से नवाजने जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। इंतहाई तशवीशनाक बात है कि BLA का दहशतगर्द गवादर पोर्ट अथॉरिटी के हमले में मुलव्विस था। करीम जान नामी टेररिस्ट उस गवादर पोर्ट अथॉरिटी के हमले में मुलव्विस था। 2022 अगस्त से उसको मिसिंग पर्सन डिक्लेयर किया जा रहा है। जो गवादर पोर्ट अथॉरिटी पे हमला किया गया वो तो एक मईशत पे हमला करने के मुतरादिफ है। इंशाअल्लाह ताला पहले भी अमन कायम किया था, अब भी अमन कायम होगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि तहरीक इंसाफ इस वक्त टूट फूट का शिकार है। PTI रहनुमा अंदरूनी सियासत छोड़कर मिसाके मईशत के लिए अपना किरदार अदा करें। आप भी ये आपस के इख्तलाफात जो आपके चल रहे हैं और जो ग्रुप बंदी चल रही है, तो आप ये कभी अमेरिका में लॉबी करते हैं, कभी यूरोपियन यूनियन को कहते हैं, कभी GSP+ के हवाले से, कभी IMF के हवाले से, कभी बाहर मुजाहरे करते हैं। तो कौमी धारे में आए, यहाँ पे सियासत करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि रमजानुल मुबारक में अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में वज़रा की ड्यूटियाँ लगाई हैं। उन्होंने कहा कि गरीब और पिसे हुए तबकात को हर तरह का रिलीफ दिया जाएगा। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के सबसे बड़े IT पार्क की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में पहले IT पार्क का क़याम सेक्टर G10 में 3.3 एकड़ रकबे पर मुहित होगा, जिससे वफाकी दारुल-हुकूमत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मंजर बदल जाएगा। यह मंसूबा पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के शोबे के लिए एक संग मील है जो जिद्दत और तरक्की की बेमिसाल मौके फराहम करेगा। IT पार्क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हिस्सा है, जिसका मकसद तकरीबन 6000 फ्रीलांसर्स को जदीद तरीन सहूलियात फराहम करना और सर्विसेज के जरिए मुल्की मईशत में अपना हिस्सा डालना है। IT पार्क मंसूबे की कामयाबी के लिए पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के दरमियान लाहौर में मुलाकात हुई, जिसमें मुल्की मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा कि हुकूमत आम आदमी को माशी मुश्किलात से निकालने के लिए पुरज़्म है, मुश्तरका कोशिशों से आगे बढ़ते हुए सूरत हाल में बेहतरी लाएंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की वफाकी हुकूमत माशी मैदान में अवाम दोस्त फैसलों का सिलसिला जारी रखेगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अवामी मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज़ के इक़दामात को सराहा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 373 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 65,525 पर बंद हुआ। तफसील बताएंगे मोहम्मद जुबैरुद्दीन।
कारोबारी दिन के आगाज से ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी रही और इंडेक्स बुलंदी की तरफ गामजन रहा, जबकि मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारों ने सरमायाकारी की। स्टॉक मार्केट तज्जियाकारों का कहना है कि IMF से कामयाब मुज़ाकरात, हुकूमत की जानिब से इदारों की कारकर्दगी में इजाफे के लिए इस्लाहाती इक़दामात, दोस्त ब्रादर ममालिक की जानिब से सरमायाकारी के लिए मुफाहिमती याददाश्तें सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे की अवामिल हैं। काफ़ी इंतजार कर रहे थे कि IMF के प्रोग्राम में जाएं और इसको कंटिन्यू करें। पाकिस्तानी मईशत को इस वक्त जो मुश्किलात दरपेश है उसका हल सिर्फ और सिर्फ IMF का प्रोग्राम था, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद जो हमें एक्सटर्नल पेमेंट्स करनी है उनका दबाव था। इसके साथ साथ हमारे रिजर्व बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं, $8 बिलियन से नीचे आ गए, वो इम्प्रूव करेंगे और फिर से साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी का पाकिस्तान के ऊपर कॉन्फिडेंस बहाल होगा और पाकिस्तान इंटरनेशनल जो लैंडर्स हैं उनसे रब्ता कर सकता है। वर्ल्ड बैंक, और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी पाकिस्तान में लैंडिंग करेंगे। फिर आपके इल्म है कि हमारे दोस्त ममालिक वो भी हमारी मदद से कतरा रहे थे, वो चाहते थे कि हम अपनी इस्लाहात लेकर आएँ। मुजमी तौर पर एक बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन था। हम देख रहे हैं SIFC के थ्रू, जिसके ज़रिए हमने देखा कि पाकिस्तानी मईशत को हम एक रिकवरी फेज़ के अंदर लेकर आए, लोकल इन्वेस्टर का एतमाद बहाल हुआ, जो इसका असर आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नजर आता है। स्टॉक मार्केट में 26 करोड़ 11 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 8 अरब 94 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, जबकि मार्केट में 144 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 168 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 20 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। सबसे ज्यादा इजाफा केमिकल, सीमेंट, ऑटोमोबाइल असेंबलर्स के शेयर की कीमतों में हुआ। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी मुतसिब एजाज अहमद कुरैशी ने मुलाकात की और इदारे की सालाना रिपोर्ट पेश की। उन्होंने सदर मुमलिकत को वफाकी मुहतसिब के इदारे की कारकर्दगी, फौरी और बिला मुआवजा इंसाफ की फराहमी के लिए इकदामात के बारे में ब्रीफ किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि 2023 के दौरान मुख्तलिफ महकमों के खिलाफ रिकॉर्ड 1,94,000 शिकायत पर कार्रवाई की गई। सदर मुमलिकत ने वफाकी मुहतसिब की कारकर्दगी को सराहते हुए रसाई बढ़ाने के लिए मजीद इकदामात की ज़रूरत पर जोर दिया। ईवान सदर में यौम पाकिस्तान परेड के मुंतजमीन में शील्ड्स तकसीम करने की तकरीब हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने यौम पाकिस्तान परेड के कामयाब इनेकाद पर फौजी और सिविल अफसरान में तारीफी शील्ड्स तकसीम की। इस मौके पर सदर ममलिकत ने कामयाब परेड के इनेकाद पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और सिविल इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि यह परेड दिफाई और पेशा वराना महारत का शानदार मुजाहिरा थी, जिस पर पूरी कौम को फख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फैसलाबाद का दौरा किया। फैसलाबाद में अरकान असेंबली और अहम शख्सियात से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि हुकूमत आम आदमी को माशी मुश्किलात से निकालने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब डोर फिरने से जाँ बहक होने वाले नौजवान आसिफ इशफाक के घर भी गईं और अहले खाना से ताज़ियत की। तफसील बता रहे हैं वसीम सज्जाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ फैसलाबाद एयरपोर्ट पहुंचे तो फैसलाबाद डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि डोर फिरने वाला वाक़या तकलीफ दे है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वर्करों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कानून ला रहे हैं, अमल भी कराएंगे। मरियम नवाज ने कहा कि फैसलाबाद में 100 स्पीडो बसें और मेट्रो बस भी ला रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, हम इनके फुट सोल्जर्स हैं सब। तो मुझे खुशी है कि आज ये आए हैं यहाँ पर। हमने एक बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या, उसकी वीडियो जब मैंने देखी मैंने इनसे भी शेयर की। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम में से कोई भी लाइटली नहीं ले सकता। फैसलाबाद के लिए हम 100+ बसेस लेके आ रहे हैं, स्पीडो बसेस जो है इंशाअल्लाह ताला। फिर उसके अलावा जो स्टूडेंट्स का मोटरसाइकिल्स का मंसूबा है वो भी हम लेके आ रहे हैं, उसमें फैसलाबाद का भी शेयर है। शुरू में हम 1 लाख घर जो है वो कम आमदनी वाले तबके के लिए करना चाहते हैं, उसमें भी फैसलाबाद का अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा शेयर है। और फैसलाबाद में मियां साहब ने अपने जलसे में जो इंतखाबी जलसा था उसमें वादा किया था मेट्रो का, तो उसकी भी प्लानिंग हम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। इस मौके पर नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि हमारी हुकूमत को न हटाया जाता तो पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों पर होता। सब मिलजुल के पाकिस्तान को दोबारा अपने मकाम पर लाएंगे। जब मैं था 2017 में अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त इकॉनमी क्या थी और फिर इनके आने के बाद क्या हुई, तो उसके नतीजे आज हम सब भुगत रहे हैं। हमने अब पाकिस्तान को दोबारा अपने मकाम पे वापस लाना है इंशाअल्लाह।
और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि ये आ जाएगा वापस इंशाल्लाह। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और कायद मोहम्मद नवाज शरीफ फैसलाबाद में धाती तार से जांबक होने वाले नौजवान आसिफ अशफाक की रिहाइशगाह पर गए और आसिफ अशफाक के वालिद मोहम्मद अशफाक और दीगर अहले खाना से ताज़ियत और दुआए मगफिरत की। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने मरहूम आसिफ अशफाक की वालदा को गले लगाकर तसल्ली दी। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि धाती तार बनाने, बेचने और खरीदने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आला ने फैसलाबाद मसीही बरादरी के हलाक होने वाले वासा एहलकारों के वुरसा से इजहार अफसोस किया। आसिफ मसीह और शान मसीह सीवरेज सफाई के दौरान हलाक हो गए थे। वज़ीर-ए-आला ने वुरसा को दिलासा देते हुए कहा कि हुकूमत वासा के सेवर मैनों की हिफाजत के लिए भरपूर इक़दामात करेगी। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला मरियम नवाज और कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से तुर्की के सफ़ीर ने लाहौर में मुलाकात की और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने के अज़्म का इयादा करते हुए दो तरफ़ा तिजारती हजम में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में हाउसिंग, सियाहत, सेहत, तालीम, वोकेशनल ट्रेनिंग और दीगर शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। तुर्क सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार और जापान के सफ़ीर के दरमियान मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और जापान की देरपा और मजबूत दोस्ती को सराहते हुए तरक्याती शोबे में मज़ीद ताउन पर जोर दिया। मुलाकात में पाकिस्तान और जापान के दरमियान तिजारत, मईशत और बरामदात में इजाफे पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद रबी ने मुलाकात की, जिसमें सफ़ीर ने वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभालने पर अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा ने सफ़ीर का शुक्रिया अदा करते हुए फ़लस्तीनी नस्ल के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा लिन जियान ने अपने बयान में कहा है कि पाक फ़ौज की दावत पर यौम पाकिस्तान के मौके पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के गार्ड ऑफ ऑनर दस्ते के नुमाइंदा वफ़द ने इस्लामाबाद में परेड में शिरकत की। उन्होंने कहा कि चीन के फौजी दस्ते की यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत दोनों ममालिक के दरमियान मुनफरिद रिश्ते की अक्कासी करती है। उन्होंने कहा कि ये दोनों मुल्कों के अस्करी ताल्लुकात के एक नए बाब का आगाज़ है। तर्जुमान ने कहा कि चीन ने शराकतदार और दोस्त की हैसियत से पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अरुणाचल प्रदेश तनाज़े के बारे में चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि भारत और चीन के दरमियान सरहद कभी तय नहीं हुई। यहाँ 4 मुख्तलिफ तबके हैं और ज़िंजियांग भारत के गैर कानूनी कब्जे से पहले भी हमेशा चीन का हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि 1987 में भारत ने इस गैर कानूनी तौर पर मकबूजा इलाके पर नाम निहाद अरुणाचल प्रदेश कायम किया। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के मामले में तफसीली फैसला जारी कर दिया है। 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस SM अतीक शाह ने तहरीर किया है। 5 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त खारिज करते हुए करार दिया कि इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला आर्टिकल 51 के मुताबिक है। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली सियासी जमात का मखसूस नशिस्तों पर हक होता है, लेकिन जनरल इलेक्शन में एक भी सीट न जीतने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। ये दलील कि मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती गैर आईनी है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों को आईनी तरीके से तकसीम किया। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 14 मार्च को मुख्तसर फैसला सुनाया था। वफाकी वज़रा जाम कमाल और कैसर अहमद शेख ने कराची में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा किया और कीमतों का जायजा लिया। तफसील आयशा आफरीन से। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद करते हुए वफाकी वज़ीर ने बरे सग़ीर के मुसलमानों के लिए आज़ाद मुस्लिम मुल्क के हुसूल की जद्दोजहद पर बाबाए कौम को खिराज अक़ीदत पेश किया। बाद में वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने कोरंगी रोड पर वाक़ई यूटिलिटी स्टोर का दौरा किया। उन्होंने यूटिलिटी स्टोर पर अशिया की दस्तयाबी और कीमतें चेक की। आम पाकिस्तानी को अपने मुल्क में आज एक हुक्मरान, एक वज़ीर आज़म, एक वज़ीर, एक ऑफिसर काम करता हुआ नज़र आए। देखिए, आप काम करना स्टार्ट करेंगे, उसके असरात आएंगे ज़रूर, लेकिन अगर हम एक स्टेटस को माहौल बनाएं कि हम कुछ ना करें, कि जिस तरह पहिया चल रहा है इसी तरह चलने दें, तो चीज़ें ख़राब होंगी, बेहतर नहीं होगी। बहरी उमूर के वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख ने भी कराची में पंजाब चौरंगी डिफेंस पर वाक़ई यूटिलिटी स्टोर का दौरा किया। उन्होंने कीमतों का जायजा लिया। ज़्यादा अहमियत इसकी है कि फैसिलिटी कैसे मिले, हम कैसे बेहतर सर्विस दें आपको। हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को आप देखेंगे दिन ब दिन इंशाल्लाह तरक्की की तरफ ले जाएंगे।
यूटिलिटी स्टोर पर खरीदारी करने वाले अवाम ने अशिया की कम कीमत पर दस्तयाबी पर इत्मीनान का इजहार किया। काफ़ी चीज़ें यहीं से लेता हूँ, यहाँ से मार्केट से बहुत ही कम रेट में मिलते हैं। आटा लेने आते हैं, चीनी इधर से लेते हैं, सही मिलती है, सस्ती मिलती है। मार्केट से तो रियायत है, जो लिस्ट इन्होंने लगाई हुई है उस लिस्ट पे सामान दे रहे हैं। कराची समेत सूबे सिंध के मुख्तलिफ अजला में यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती कीमतों पर वाफिर मिकदार में रोजमर्रा की अशिया दस्तयाब हैं, जिनसे अवाम खूब फायदा उठा रही है। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारट ने लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा किया और अशिया खुर्दनोश की फराहमी और मयार का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया के नक्शे किया और सार्फिन से सहूलियात और मसाइल के हवाले से दरियाफ्त किया। आज़म नज़ीर तारट ने कहा कि मईशत की बेहतरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क जल्द माशी तरक्की की राह पर गामज़न होगा। इस मौके पर यूटिलिटी स्टोर्स के अमले ने वफाकी वज़ीर को बताया कि रमज़ान पैकेज के तहत PISP में रजिस्टर्ड अफराद को खुसूसी सब्सिडी के अलावा आम सार्फिन के लिए भी कीमतों में रियायत दी जा रही है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने नारोवाल यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि साबिक हुक्मरानों ने अवामी फलाह के मनसूबों को दानिस्ता ताख़ीर का निशाना बनाया, जिससे उनकी लागत कई गुना बढ़ गई। एहसन इकबाल ने कहा कि मंसूबे रोकना तालीम दुश्मन सोच और इंतकामी कार्रवाई का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि तमाम तलबा जदीद रिसर्च पर तवज्जो दें, हमें टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे जाना है। हमारा रोशन मुस्तकबिल होनहार बच्चों की मेहनत और कोशिश से वाबस्ता है। नाज़रीन, भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में इख्तलाफ राय को दबाने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मोदी हुकूमत ने कश्मीरी सरकारी मुलाजमीन की तरफ से हुकूमत की पॉलिसियों और इक़दामात पर तनकीद के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। मोदी हुकूमत की तरफ से जारी एक सर्कुलर में सरकारी मुलाजमीन को ताज़ा इंतबाह किया गया है कि वह हुकूमत की पॉलिसीज़ और इक़दामात पर तनकीद के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बाज रहें। कश्मीरी मौर्रिख हफ्सा कंजवाल ने कहा है कि भारत मकबूजा इलाके को तारीख सकाफत को मिटाने की कोशिशें कर रहा है। उन्होंने मीडिया इंटरव्यू में तारीख राय को दबाने के लिए मोदी हुकूमत के हथकंडों को उजागर किया, जिनमें बिला जवाज गिरफ्तारियां और आबादी के तनासुब को बिगाड़ना शामिल है। उन्होंने मकबूजा इलाके में जारी जराइम पर भारत को जवाबदेह ठहराने में आलमी बिरादरी की नाकामी पर इसको तनकीद का निशाना बनाया। कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में जनूबी एशिया के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए तनाज़ा कश्मीर के फौरी हल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मकबूजा इलाके में भारतीय फोर्सेज की तरफ से जारी मुजालिम की मजम्मत करते हुए पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने हुर्रियत रहनुमा और शहरियों को हिरासा करने समेत इंसानी हुकूक की बढ़ती हुई खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। पार्टी ने इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीमों पर जोर दिया कि वो कश्मीरियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करें। DFP ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि दरीन एतराज़ कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि हुकूमत अच्छे नस्ब नसक, किफ़ायत शारी और कानून की बालादस्ती की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मुजफ्फराबाद में फॉरेस्ट गार्ड एसोसिएशन की तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में सेहत, तालीम और सड़कों के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि महकमा जंगलात को मज़ीद फ़ाल बनाएंगे और मुलाजमीन के तमाम मसाइल हल करेंगे। कराची में PCSIR लेबॉरेटरीज के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि सियासी इस्तेहकाम के लिए वफाकी काबीना में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुआशी तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत के साथ हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए MKM जिद्दोजहद जारी रखेगी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश की है। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस जस्टिस अमजद अली, जस्टिस सना इकराम मिनहास, जस्टिस जवाद अख्तर, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस मोहम्मद अब्दुल रहमान और जस्टिस अरबाब अली हाकड़ों को मुस्तकिल करने की सिफारिश भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों से बर्रियत और सजा पाने वाले शहरियों की तफसील तलब कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि अदालत को बताया जाए कि ज़ेर हिरासत 103 में से कितने अफराद की रिहाई बनती है। अदालत ने मुकदमे में फरीक बनने समेत मुख्तलिफ दरखास्तों पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि मुकदमे की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने से मुतल्लिक दरखास्त पर फैसला जारी किया जाएगा। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अदालत का बुनियादी मकसद इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है।
سماعت کے آغاز پر درخواست گزار ریٹائرڈ جسٹس جواد اس خواجہ کے وکیل نے معاملے کی سماعت کے لیے 9 رکنی بینچ تشکیل دینے کی استدعا کی۔ آئندہ سماعت 28 مارچ کو ہوگی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ FIA کی جانب سے صحافیوں کو ہراساں کرنے کے معاملے کا 2021 میں اس کو نوٹس دیا گیا تھا، اس وقت ہی کچھ فیصلہ ہو جاتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ FIA کی جانب سے صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق معاملے کی سماعت کے دوران 3 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس نے کہا کہ از خود نوٹس کے بعد 2 رکنی بینچ سے معاملہ اب 5 رکنی بینچ کے سامنے مقرر کیا گیا ہے۔ دوران سماعت FIA نے عدالت کو صحافی عامر میر اور عمران شفقت کے خلاف مقدمات واپس لینے کی یقین دہانی کرائی۔ سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ FIA انکوائری کے بعد گرفتاری کا اختیار رکھتی ہے۔ مزید سماعت بدھ کو ہوگی۔ پاک بحریہ نے کھلے سمندر میں ایرانی ماہی گیروں کو بچانے کے لیے کامیاب ریسکیو آپریشن کیا ہے۔ ISPR کے مطابق پاک بحریہ کے جہاز PNS یرموک نے کھلے سمندر میں حادثے کا شکار ایرانی کشتی کی طرف سے ہنگامی کال کو بروقت مانیٹر کیا۔ پاک بحریہ کے جہاز نے فوری امدادی کارروائی کرتے ہوئے ایرانی کشتی کے 8 ماہی گیروں کو بحفاظت بچا لیا۔ پاک بحریہ کا انسانی ہمدردی کے تحت ریسکیو آپریشن سمندر میں انسانی زندگی کے تحفظ کو یقینی بنانے کے عزم کا عکاس ہے۔ یوم پاکستان کے حوالے سے نیشنل لائبریری آف پاکستان میں کتابوں کی نمائش ہوئی۔ کتب بینوں کی بڑی تعداد نے یہ نمائش دیکھی۔ وقار حیدر رپورٹ کر رہے ہیں۔ نیشنل لائبریری آف پاکستان میں یوم پاکستان کے حوالے سے کتابوں کی خصوصی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ تاریخ پاکستان، قومی ہیروز یا پھر تحریک آزادی ہو، ہر حوالے سے کتابیں موجود ہیں۔ قومی لائبریری کی انتظامیہ بھی پڑھنے والوں کو تمام تر سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے جو ریڈرز ہیں اس میں ینگ لوگ ہیں جو تیاری کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں، بہت ساری پبلک آتی ہے، تو ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دروازے جو ہیں وہ میکسیمم ان کے لیے کھلے رہیں۔ ہمارے پاس تحریک پاکستان اور پاکستان کی ہسٹری سے متعلق بہت بڑی تعداد میں کتابیں موجود ہیں جو کہ شاید ہی پاکستان میں کسی اور جگہ پہ اویلیبل ہوں۔ جب کتابوں کی نمائش ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کتب بین جہاں نہ پہنچے؟ کتابیں پڑھنے والوں کی بھی بڑی تعداد ان کتابوں کے مطالعے کے لیے بھی کھینچی چلی آئی ہے۔ جو بک مجھے چاہیے ہوتی ہے مجھے فوراً یہ لوگ دے دیتے ہیں اور میں آرام سے اسٹڈی کر لیتی ہوں، مطلب مجھے خود نہیں لینی پڑتی۔ پاکستان کی ہسٹری اور ان کے لیڈرز کے بارے میں بہت زیادہ کلیکشن ہے۔ قائد اعظم پہ ہو، ان کی بایوگرافی ہو، علامہ اقبال پہ ہو یا دیگر جو بھی لیڈرز رہ چکے ہیں یہاں پہ، تو یہاں پہ سب سے زیادہ آپ کو کلیکشن ملے گی۔ پاکستان میں کتابوں کا اتنا بڑا ذخیرہ شاید ہی کسی اور جگہ موجود ہو، اور جہاں سے استفادہ کرنے والے خوش ہیں کہ ان کو ایک ہی چھت کے نیچے اس قدر بہترین اور کارآمد مواد میسر ہے جس سے وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پیاب پاکستان کے لیے مثالی کردار ادا کرنے والے عظیم رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کوئٹہ کے تعلیمی ادارے میں تقریب ہوئی۔ تفصیل بتائیں گے سرفراز شیخ۔ یوم پاکستان کی مناسبت سے کوئٹہ میں ننھے طلباء طالبات کے لیے رنگا رنگ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ سبز ہلالی پرچموں سے سجائے گئے اسکول میں ننھے طلباء طالبات نے یوم پاکستان کے حوالے سے تقاریر کی، ملی نغمے اور خوبصورت ٹیبلوز پیش کرتے ہوئے ثقافتی رنگوں کو اجاگر کیا۔ اس دوران اساتذہ نے قیام پاکستان کے حصول کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی مثالی جدوجہد آزادی اور دفاع وطن کے لیے قربان ہونے والے شہداء کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ اس دن کو منانے کا مقصد بچوں کو اپنے آباء و اجداد کی ملک اور قوم کے لیے دی گئی عظیم قربانیوں کی اہمیت سے روشناس کروانا تھا۔ یوم پاکستان کی مناسبت سے تقریب میں ننھے بچوں نے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے قومی پرچم لہرایا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کیے۔ مسکراتے معصوم چہروں پر سرزمین وطن سے محبت کا اظہار قابل فخر تھا۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ PTV کراچی مرکز سے جاری رمضان پاکستان ٹرانسمیشن میں علماء کرام نے تقویٰ کے موضوع پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ تفصیل سید جہانگیر علی سے۔ رمضان پاکستان ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ قاری محمد حسین نے اپنی دلکش انداز میں تلاوت کی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ٹرانسمیشن میں پیش کی گئی۔
शेफ सुमैया ने मजेदार डिश बनाई। मेजबान राबिया अनम, डॉक्टर बिल्किस, मेहमान अदाकार नवाज सईद ने ट्रांसमिशन को चार चांद लगा दिए। लास्ट ईयर भी आई थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा था यहाँ के। रियली लाइकिंग इट, सेट बहुत अच्छा है। पीटीवी ऑफ कोर्स होल्ड्स so many memories in everyone's hearts. तो मैं तो बहुत खुश हूँ। ट्रांसमिशन हम हर साल अपने पूरे दिल से करते हैं, खुलूस नीयत से करते हैं, लेकिन उसको बेहतरीन बनाते हैं हमारी ऑडियंस। जो प्यार, मोहब्बत भरे पैगामात और माशाल्लाह जो रेटिंग आ रही है, इट्स स्काई रॉकेटिंग और बहुत बहुत शुक्रिया। उलमाए कराम ने तकवा के मौजू पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंसान हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और तकवा अख्तियार करे, यही अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनुदी हासिल करने का जरिया है। ट्रांसमिशन में किड्स सेगमेंट में एहसन खान और राबिया अनम ने बच्चों से दिलचस्प गुफ्तगू की, जबकि नातिया मुकाबला और क्विज के मुकाबले में तलमा ने अपनी जहानत का मुजाहरा किया। ट्रांसमिशन का इख्तिताम अज़ान मगरिब पर हुआ। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सड़कों पर ट्रैफिक रवां-दवां रखनी हो या गुंजान बाजारों में रोजेदारों की सिक्योरिटी का ख्याल, इस्लामाबाद पुलिस माह रमजान में भी अपने फराइज से किसी सूरत गाफिल नहीं है। मादावान की रिपोर्ट देखते हैं। रमज़ानुल मुबारक के दौरान रोज़ादार की पहली ख्वाहिश अपने घर पर एक दस्तरखान पर अफ्तार है, लेकिन ड्यूटी के औकाते कार में अपनों के साथ अफ्तार पुलिस वालों के नसीब में नहीं। उन्हें कहीं सड़क पर ट्रैफिक देखना होती है तो कहीं पर रश वाली जगहों पर अमन आमा की जिम्मेदारी से निबर्द आजमा होना होता है। इन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। ये लोग भी हम जैसे ही आम लोग हैं, इधर बैठे हुए ड्यूटियां दे रहे हैं, अपने घर वालों से दूर हैं, बहुत सख्त ड्यूटी कर रहे हैं। ये लोग हमारे लिए खड़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अपना रोज़ा छोड़ के हमारे लिए खड़े हैं। अभी तक बेशक रोज़ा अफ्तार होने लगा, फिर भी वो खड़े हुए ड्यूटी कर रहे हैं। ये तो उनका बड़ा पाना है। इस्लामाबाद के शहरी पुलिस जवानों की फर्ज शनासी के गर्विदा हैं और रमज़ान के इस महीने में उनके एहसार को बेमोल करार देते हैं। वैसे इनकी ड्यूटी बहुत सख्त है, बेचारे हमारी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं, मगर यह है कि इन्हें भी थोड़ा सा टाइम होना चाहिए इनके पास भी अफ्तारी के लिए। अभी भी देखें अफ्तारी का टाइम है और ये ड्यूटी पे खड़े हुए हैं, तो इनकी हिम्मत है, हम तो इन्हें दाद पेश करते हैं। इस्लामाबाद पुलिस के जवान अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने फ़राइज़ की बजावरी में इस कदर मगन हैं कि अक्सर हम जैसे आम लोग भी उन्हें नज़रअंदाज कर जाते हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने अपने जवानों के लिए अफ्तार का बंदोबस्त तो किया है, ताहम उनका कहना है कि ये एक लंच बॉक्स घर पर होने वाली अफ्तारी का नेबल बदल नहीं हो सकता। अमाद अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और सहरी खाकर रोज़ा रखना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। माह सयाम में सहरी की खुसूसी एहतमाम किया जाता है। इसी हवाले से देखते हैं लाहौर से वर्दा सलीम की रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में सहरी करना सुन्नत नबवी है। रोजादार रोजे का आगाज सहरी से करता है। इस सिलसिले में घरों में खवातीन सुबह सवेरे उठ जाती हैं और अपने अहले खाना के लिए सहरी तैयार करती हैं। कोई सहरी में पराठे पसंद करता है तो कोई सादा रोटी, ताहम सालन कोई भी हो, दही का इस्तेमाल तो जरूर किया जाता है। हमारे घर की जो औरतें हैं वो हमारे लिए और भी कई तरह के लवाजमात वो करना चाहती हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से जितनी हमारे लिए फुर्सत होती है हम उससे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। सुबह के वक्त ख़वातीन उठती हैं और सहरी बना कर देती हैं। ख़वातीन सबका ख्याल रखती हैं और जो जो कहता है वो बना कर देती हैं। ख़वातीन घर के हर फर्द की पसंद के मुताबिक सहरी तैयार करती हैं और इस दौरान वो खुद भी रोजा रखने के लिए सहरी के लिए वक्त निकालती हैं। तो रमजान का महीना बहुत बड़ा अच्छा गुजर रहा है। सादा ग़िज़ा खाते हैं सहरी में, बच्चों की ख्वाहिश के मुताबिक जो बच्चे कहते हैं उनको हर चीज उनको मिल जाती है। सहरी के दौरान सादा खुराक का इस्तेमाल किया जाए ताकि दिन भर तबीयत बोझल न हो। सहरी का इख्तिताम अक्सर चाय पर होता है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। जनाब, रमजानुल मुबारक के महीने में मुख्तलिफ खाने दस्तरखानों की जीनत बनते हैं, लेकिन दस्तरखान पकौड़ों के बगैर अधूरा समझा जाता है। और इसी वजह से तफसील क्या है बताएंगे सिद्रा फातिमा। गर्मा गर्म मज़ेदार पकोड़े माह रमज़ान में इफ्तारी का लाजमी जुज़्व हैं। रमज़ान का महीना हो और दस्तरखान पर पकोड़े न सजे हों तो इफ्तारी अधूरी सी लगती है। बड़े हों या बच्चे, पकोड़े सभी की पसंदीदा डिश है। पकोड़े किसको पसंद नहीं होते, और रमज़ान का एक महीना आता है जिसमें आपको पता है चटपटी चीज़ें इफ्तार में चाहिए होती हैं।
और ऐसा हो नहीं सकता कि दस्तरखान में पकौड़े ना हो। हर घर में पकोड़ों की मुख्तलिफ किस्म पसंद की जाती है। कहीं सिर्फ आलू और प्याज के पकोड़े तो कहीं पालक और मिर्च के पकोड़े पसंद किए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे घरों में बदेसी खानों का रुझान बढ़ रहा है, इसी के साथ पकोड़ों में मजीद वैरायटी आती जा रही है, जैसे अंडा पकोड़े, पनीर पकोड़े, चिकन पकोड़े। दुकानदारों का कहना है कि अवामुन्नास में रिवायती पकोड़े ही सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। ये रमजान की सौगात है, इफ्तार के टाइम ये लिए जाते हैं, लोग लेके जाते हैं यहाँ से। रमजान गर्मी में आए या सर्दी में, इफ्तार में पकोड़े अपनी जगह किसी को नहीं लेने देते। चाहे बच्चे हो या बड़े, पकोड़े सब ही की पसंदीदा डिश है और इफ्तार इन मज़ेदार पकोड़ों के बगैर नामुकम्मल है। सिद्रा फातिमा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत पसरूर में भी बुनियादी ज़रूरी अशिया रियायती नरखों पर फराहम की जा रही हैं। कैसर हयात की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत पसरूर के शहरियों के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए, घी 335 रुपए और चीनी 109 रुपए किलो में दस्तयाब है। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत शहरी दालें 10 रुपए, चावल पर 10 रुपए, बेसन 50 रुपए फी किलो रायत पर खरीद रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बहुत अच्छा रिलीफ पैकेज है जो कि यूटिलिटी स्टोरों पर दिया गया है, क्योंकि जो बाहर आम बाज़ार से चीज़ें मिलती हैं वो आम आदमी की कुव्वते खरीद से बाहर हैं, तो यहाँ से ये है 30% रियायती जो हैं चीज़ें मिल रही हैं, जो कि हुकूमत का बहुत अच्छा इकदाम है। इस स्टोर पे ख़रीदारी करने आए हैं शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया कि उन्होंने ये बहुत अच्छा जो है रिलीफ पैकेज दिया है रमज़ान में। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो रिलीफ पैकेज इन्होंने गरीबों के लिए दिया है ये रमज़ान के बाद भी चलना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत आम सार्फिन को खुर्दनी तेल, सफ़ेद चना, दाल चना और चावल पर 25 रुपए जबकि चाय की पत्ती पर 100 रुपए तक की रियायत दी जा रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद सारा साल 20 किलो आटा, 5 किलो घी, 5 किलो चीनी और 3 किलो चावल समेत कुकिंग ऑयल और दालें आम बाजार से रियायती नरखों पर खरीद रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत दी जाने वाली सब्सिडी से अवाम की मुश्किलात में कमी आई है। राणा कैसर हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पसरूर, सियालकोट। लोधरा में रमज़ान मुबारक में मुखय्यर अफराद की तरफ से गरीब और मुस्तहिक अफराद को राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। अब्दुल्ला डाहा तफसील बता रहे हैं। लोधरा शहर के मुखय्यर हजरात की जानिब से मुस्तहिक और गरीब अफराद में राशन की तकसीम शुरू है। लोधरा के शहरी सकाफत हुसैन ने अपनी मदद आप के तहत लोधरा के 200 अफराद में राशन बैग तकसीम किए। इस राशन के अंदर 1 महीने का राशन है जिसमें आटा, चावल, चीनी, दालें, घी की ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मौजूद हैं और इससे एक नॉर्मल फैमिली बासानी गुजारा कर सकती है। इस राशन बैग में रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें आटा, चावल, चीनी, चाय की पत्ती, दालें, मशरूबात वगैरह शामिल हैं। खाने पीने की ज़रूरी चीज़ों पर मुश्तमिल राशन के बैग में 1 माह से ज़्यादा का राशन रखा गया है ताकि मुस्तहिक गरीब और सफ़ेद पोश अफराद माह मुक़द्दस में अपना गुजर बसर आसानी से कर सकें। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। रमज़ान मुबारक में दस्तरखान पर सजाए जाने वाले कई पकवान हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक तैयार नहीं किए जाते और ऐसे खाने सेहत के मसाइल को भी जन्म देते हैं। तफसील बता रही हैं अरीबा ज़ीशान। इबादत के लिए सेहत का होना ज़रूरी है। अरकान इस्लाम की अदायगी जहाँ हमें रूहानी तौर पर सुकून और राहत पहुँचाती है, वहीं जिस्मानी लिहाज से भी सेहत और तंदुरुस्ती का ज़रिया बनती है। कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादातर कुदरती ग़िज़ाएँ लें। प्रोसेस्ड फूड और बाहर की बनी हुई अशिया आम दिनों में भी नहीं खानी चाहिए और रोज़े में ख़ास तौर पे इसका एहतियात करना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक में अमूमन घरों में चटपटे खानों की भरमार हो जाती है। माहिरीन के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा कैलोरीज वाली अशिया इस्तेमाल करने से सेहत पर मनफी नुकसानात बढ़ जाते हैं। लोगों को ऐसे मशरूबात इस्तेमाल करने चाहिए जिसमें कैफीन की मिकदार ज़्यादा ना हो, क्योंकि कैफीन जिस्म में पानी की कमी का सबब बनती है। रमज़ान में ज़ियाबतीस से मुतासरा अफराद को माहिरीन ने हिदायत दी है कि रमज़ान में डाइट फ्री मशरूबात के इस्तेमाल के बजाय लीमू पानी या नमकीन लस्सी का इस्तेमाल बढ़ाया जाए, जबकि रोजे की हालत में अपनी शुगर चेक करने को भी लाजमी करार दिया है। आप रोजे बिल्कुल रख सकते हैं। रोजा आपके ज़ियाबतीस के मर्ज को कम करने में आपकी मदद कर सकता है। दूसरी जानिब माहिरीन ने यह भी तजवीज़ दी है कि चहलकदमी के साथ साथ नींद का भी खास ख्याल रखा जाए। अरीबा ज़ीशान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला जिस्वी तौर पर अबरालूद रहेगा। ताहम रात में खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी की, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। छोर में भी 40, लसबेला में 39, टंडोजाम और ठट्ठा में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 33, कराची 36, पेशावर 33 और कोयटा में 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।